in the midst of all these troubles, how can we live a trouble-free life? सब प्रकार के संकटों के बीच में कैसे हम एक संकट के बिना जीवन बिता सकते हैं? Is it possible to live a trouble-free life? संकट के बिना जीवन बिताना हमारे लिए संभव है? Money cannot solve all the problems of man. मनुष्य की सारी समस्याओं को पैसा सुलझा नहीं सकता। And health and wealth and money and material, these things cannot really solve all problems in our life. आरोग्य, धन संपत्ति, पैसा, सारी वस्तुएं हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकती। So then, how can we live a trouble-free life? ऐसा है तो कैसे हम एक संकट के बिना जीवन बिता सकते हैं? One day, we read in the Bible, a woman called Martha, she was so much troubled and worried about many things. बाइबल में हम एक स्त्री मार्था के बारे में पढ़ते हैं जो कई बातों के बारे में चिंता करती और घबराती थी। She went to Jesus with all her troubles and problems. अपनी सारी संकट और समस्याओं के साथ वो यीशु के पास पहुंची। Then Jesus told her what was the solution to all her problems. तब यीशु ने बताया कि उसकी सारी समस्याओं का हल क्या है। And we will turn to Luke chapter 11, 41 and 42. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 41 और 42 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। Maybe Jesus may be calling your name and saying, and thou art careful and troubled about many things this morning. शायद यीशु आज सुबह के समय आपके नाम को पुकार कर कहता होगा कि आप कई बातों के बारे में चिंता करते और घबराते हैं। After mentioning that, Jesus says the solution to that. उसके बारे में कहने के पश्चात उसका हल भी यीशु बता कर देता है। But one thing is needful. लेकिन एक बात अवश्य है। What is that needful thing? वो आवश्यक बात क्या है? Mary had chosen the good part. मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। What was that Mary had chosen? वो क्या था जो मरियम ने चुन लिया था? We read Mary sat at Jesus' feet and heard his word. हम पढ़ते हैं मरियम प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। So, sitting at the feet of Jesus is different from hearing the word of God from Jesus. यीशु के पांवों के पास बैठना यीशु के वचन सुनने से एक अलग बात है। Mary had chosen that good part. What is that good part? Sitting at the feet of Jesus and hearing his word. मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था, अर्थात प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसके वचन को सुनने का अनुभव। Sitting at the feet of Jesus is different from sitting in the presence of God. यीशु के पांवों के पास बैठना उसके सम्मुख में बैठने से एक अलग अनुभव है। Many of us may be praying in the presence of God. हम में से कई लोग प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करते होंगे। I think many of us, we do not sit at the feet of Jesus. मैं सोचता हूँ हम में से कई लोग यीशु के चरणों के पास नहीं बैठते हैं। What is the meaning of sitting at the feet of Jesus? यीशु के पांवों के पास बैठने का क्या अनुभव है? In our spirit, we take the lowest, humblest place in life, giving the highest place for Jesus, yielding and submitting to the will and plan of God. अपनी आत्मा में सबसे निचला, सबसे दीनता के एक स्तर को धारण करते हुए सबसे ऊंचा और महान अनुभव अपने प्रभु को देने का एक अनुभव है और उसके लिए अपने आप को अर्पण कर देने का अनुभव। So sitting at the feet of Jesus means taking the lowest place, humblest place in the presence of God. यीशु के चरणों में बैठने का अनुभव कहने से परमेश्वर के सम्मुख में सबसे निचला और सबसे दीन अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करना Giving the highest place for Jesus. और यीशु को सबसे ऊंचा स्थान देना, Yielding and submitting to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करके सौंप देने का अनुभव। So many dear children of God spend time in the presence of God. Many of them say, I prayed but Jesus did not speak to me. कितने ही परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के सम्मुख में समय तो बिताते हैं, वे क्या कहते हैं, मैं तो प्रार्थना करता रहा लेकिन यीशु ने मुझसे बात ही नहीं किया।
Jesus did not speak to you, beloved ones. We have not sat at the feet of Jesus. We may sat in the presence of Jesus, but not at the feet of Jesus. प्रिय लोगों, यदि यीशु ने हमसे बात नहीं किया है तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में तो बैठे होंगे, लेकिन हम उसके पांव के पास नहीं बैठे हैं। So, sitting in the presence of God, you may pray, but He may not speak. परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर आप प्रार्थना तो करते होंगे, लेकिन वो आपसे बात नहीं करता। But when we sit at the feet of Jesus, He will speak to us. लेकिन जब हम यीशु के पांव के पास बैठेंगे, वो हमसे बात करेगा। We may keep quiet. हम चुप रह सकते हैं। Be still and know that I am God. चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Beloved ones, there is a sweet, sweet experience in spiritual life. प्रिय लोगों, आत्मिक जीवन में एक बहुत ही मधुर अनुभव है। Maybe in our beginning of our Christian life, we have been speaking in our prayer so much to Jesus. शायद हमारे मसीह जीवन के आरंभ में अपनी प्रार्थना में हम अधिक यीशु से बात करते रहते होंगे। But as we grow in spiritual life, we will learn to sit at the feet of Jesus. लेकिन जैसे जैसे हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, हम यीशु के पांव के पास बैठकर उसके सुनने का एक अनुभव हम प्राप्त करते हैं। I already mentioned sitting at the feet of Jesus means taking the humblest, lowest place in the presence of God. मैंने आपको पहले ही बताया कि यीशु के चरणों के पास बैठने का अनुभव कहने से परमेश्वर के सम्मुख में सबसे निचला और सबसे दीन अनुभव को प्राप्त करना। In that state, beloved ones, Jesus will speak more to us, and we may speak very less, or we may not speak. We just sit at His feet. ये लोग उस अनुभव में ऐसा हो सकता है कि हम यीशु के पांव के पास बैठे, यीशु हमसे अधिक बात करेगा, हम तो बिल्कुल उससे नहीं के बराबर बात करेंगे। Those who choose, those who learn to sit at the feet of Jesus alone can choose the best in life. जो यीशु के पांव के पास बैठते, केवल वे ही लोग अपने जीवन में उस उत्तम भाग को चुन लेते हैं। Kindly listen, let me say it again. Those who learn to sit at the feet of Jesus alone, they can choose the best in life, as Mary did. कृपया ध्यान से सुनिए, जो लोग यीशु के पांव के पास बैठते हैं, वे लोग मरियम के समान अपने जीवन में उस उत्तम भाग को चुन लेते हैं। Those who learn to sit at the feet of Jesus only can give their best to Jesus also. जो यीशु के पांव के पास बैठते हैं, वे ही लोग अपना सर्वोत्तम यीशु को दे सकते हैं। Do you want to give the best of your life for Jesus? क्या आप अपने जीवन के सर्वोत्तम भाग को यीशु को देना चाहते हैं? What is the best way to spend the rest of your life? अपने शेष जीवन को बिताने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? What is the best way to spend the rest of your life? अपने शेष जीवन को बिताने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? That is to choose what Mary chose. वो है मरियम के समान चुनने का एक अनुभव। Mary chose to sit at the feet of Jesus and to hear His word. मरियम ने यीशु के पांव के पास बैठकर उसके वचन सुनने के अनुभव को चुन लिया। In other words, one word from the mouth of Jesus is satisfying and inspiring for all of my life, all of our life. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले एक शब्द ही हमारा जीवन भर हमको संतुष्टि और उत्साह देने वाला होकर दिखाई देगा। मेरे जीवन के लिए भी ऐसा दिखाई देगा। This morning, did you hear the voice of Jesus? आज सुबह के समय क्या आपने यीशु की आवाज को सुना? You may say, no, Jesus didn't speak to me. आप कह सकते हैं कि शायद यीशु ने मुझसे बात नहीं की। Beloved ones, that is not true. प्रिय लोगों, ये सच नहीं है। He is waiting to speak to us. वो तो हमसे बात करने के लिए बाट जो रहा है। We must be willing to come to the feet of Him and to listen to His voice. लेकिन उसके चरणों के पास आने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए हम आग्रह के साथ दिखाई देना चाहिए। Look at the humility of Mary of Bethany. बेतनिया की मरियम जी की दीनता को देखिए। In another place we read, she went in John chapter 12 we read, Jesus went to the feet of Jesus. यूहन्ना का सुसमाचार 12वें अध्याय में हम देखते वो यीशु के पांव के पास गई। One thing we find about outstanding about Mary of Bethany, 3 places we read about Mary of Bethany, all the 3 places we read Mary was at the feet of Jesus. बेतनिया की मरियम के बारे में हम 3 स्थानों में देखते,
उन तीनों स्थानों में हम यही देखते हैं कि मरियम जो है यीशु के पांव के पास बैठी हुई दिखाई दी। Oh, I heard there were saints in the past, I don't know now, who lived on their knees more than on their feet. मैंने पुराने समय के संतों के बारे में सुना है। अभी ऐसे लोग हैं क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे संत लोग जिन्होंने अपने पांव के ऊपर रहने से बढ़कर अपने घुटनों के ऊपर अधिक जीवन बिताया। Here in John's Gospel chapter 12 verse 3 we read again Mary at the feet of Jesus doing something very humble service. यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसके 3 वचन में हम देखते मरियम यीशु के पांव के पास बैठी हुई थी और वो ऐसा एक कर्म कर रही थी जो बहुत ही एक दीनता पूर्वक कार्य था। She took the highest part of her body, her hair, and used for the service of the lowest part of the body of Jesus, the feet of Jesus. अपने शरीर के सबसे ऊंचे भाग बालों को लेकर उसने यीशु मसीह के शरीर के सबसे निचले भाग की सेवा करने के लिए इस्तेमाल किया। As we know, the hair of a woman is called the glory of her. जैसा हम जानते हैं कि स्त्री के बाल उसकी महिमा कहलाते हैं। So she took the highest part of her body, her glory, for the lowest part of the body of Jesus for his service. उसने अपने शरीर के सबसे श्रेष्ठ भाग को अपनी महिमा को लेकर यीशु मसीह के सबसे निचले भाग की सेवा करने के लिए सौंप दिया। So many want to serve God, but they don't know how to serve God. कितने ही लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कैसे उसकी सेवा करना है। For serving Jesus, humility is needed. यीशु की सेवा करने के लिए दीनता आवश्यक है, Because Jesus is very humble. क्योंकि यीशु तो बहुत ही दीन है। For humble Jesus, only humble people can serve him. दीन यीशु की सेवा केवल दीन लोग ही कर सकते हैं। We read in the 3rd verse, John 12:3, then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. तब मरियम ने जटामांसी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से उसका घर सुगंधित हो गया। She brought an alabaster box full of precious ointment. वो बहुमूल्य इत्र को संगमरमर के पात्र में लेकर आई, Broke the alabaster box and poured it at the feet of Jesus. और उसने संगमरमर के पात्र को तोड़कर यीशु के चरणों में उस इत्र को उंडेल दिया। This is the true service for Jesus any one of us can do. यीशु मसीह के लिए हम करने वाली सबसे सच्ची सेवा यही है। She brought a alabaster box of very precious ointment. वो बहुमूल्य इत्र को एक संगमरमर के पात्र में लेकर आई। She did not open the cork and open the a bottle and poured it. No, she broke the bottle and poured at the feet of Jesus. उसने कुप्पी के ढक्कन को खोलकर उस इत्र को उसके पांव पर नहीं उंडेला, लेकिन उस कुप्पी को तोड़कर उसने पूरा इत्र उसके पांव पर उंडेल दिया। Our body can be compared to an alabaster box. हमारे शरीर की जो तुलना है हम इस संगमरमर के पात्र से कर सकते हैं। Our life can be compared to an alabaster box. हमारे जीवन की तुलना इस इत्र की कुप्पी से कर सकते हैं। We must bring our life to the feet of Jesus. हमें अपने जीवन को यीशु के चरणों में लाना होगा, And that should be full of divine love, ointment, precious ointment, full of perfume. और वो पूरी तरह से इत्र से, बहुमूल्य इत्र से, अर्थात अपने ईश्वरीय स्वभाव से, ईश्वरीय प्रेम से भरपूर होना चाहिए। Our heart should be filled with divine love. हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेम से भरपूर होना चाहिए। It is the precious ointment. ये बहुमूल्य इत्र है। Our love should not be for the world. हमारा प्रेम संसार के लिए न हो। Our love should not be for sin of the world. हमारा प्रेम संसार के पाप के लिए नहीं होना चाहिए। Our divine love should not be for any man or woman. हमारा ईश्वरीय प्रेम कोई पुरुष या स्त्री के लिए नहीं होना चाहिए। Our love should be full of perfume. हमारा प्रेम इत्र से भरपूर होना चाहिए। That is God's love, Calvary's love. वही परमेश्वर का प्रेम, कलवरी का प्रेम है। She didn't want to give this ointment
for any man. वो किसी भी मनुष्य के सामने उंडेलने के लिए इस तेल को देना नहीं चाहती थी। She did not want to sell that ointment for money. वो पैसे के लिए इस इत्र को बेचना भी नहीं चाहती थी। She wanted to give wholly for Jesus. वो उसे पूरी तरह से यीशु को ही देना चाहती थी। This morning Jesus is speaking to you and to me. आज सुबह के समय यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातें कर रहा है। Dear child of God, will you be a Mary today? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्या आज आप एक मरियम होकर दिखाई देंगे? Bring the alabaster box this morning to the feet of Jesus. यीशु मसीह के चरणों में उस संगमरमर के पात्र को लेकर आए। Let our heart be full of Calvary's love. हमारा हृदय कलवरी के प्रेम से भरपूर हो जाए। Let our thoughts all be full of Calvary's love. हमारे विचार भी पूरी तरह से कलवरी के प्रेम से भरपूर हो जाएं। Our body, our feeling all filled with that Calvary's love, that ointment. हमारा शरीर, हमारी सारी भावनाएं उस कलवरी का प्रेम अर्थात उस इत्र से भरपूर हो जाए। She brought it and poured at the feet of Jesus. वो उसे लेकर आई, उसने इसे यीशु के चरणों में उंडेल दिया। We must bring all that we have, our love, our devotion, our desire, everything that is in us, we must bring to Jesus and offer as a perfume of praise and sacrifice. हमें अपने सब कुछ को अर्थात हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारे आग्रह को और जो कुछ हम में है उसे यीशु के पास लाकर स्तुति के इत्र व बलिदान के रूप में अर्पण करना है। After she poured at the feet of Jesus, what did she do? जब उसने यीशु के पांव के ऊपर उंडेल दिया, फिर उसने क्या किया? She with her long hair wiped the feet of Jesus. अपने लंबे बालों के द्वारा उसने यीशु के पांव को पोंछा। Then the fragrance came to her head. तब वो सुगंध उसके सिर तक प्रवेश किया। From the feet of Jesus, now fragrance came to the head of Mary. यीशु के पांव से वो सुगंध मरियम के सिर तक प्रवेश किया। What does we learn from that? इससे हम क्या सीखते हैं? When we learn to sit at the feet of the Lord and pour our life to Him, जब हम यीशु के चरणों में बैठकर अपने जीवन को उसके समुख में उंडेल देते हैं, our head, our thoughts will become fragrant. हमारा सिर, हमारे विचार सुखदायक सुगंध होकर बदल जाएंगे। This morning, be a child of God. How are your thoughts? आज सुबह के समय प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आपके विचार कैसे हैं? Are they fragrant, full of perfume for Jesus? क्या यीशु के लिए इत्र से भरपूर होकर सुखदायक सुगंध होकर दिखाई देते हैं? When this fragrance was diffused all over the place, जब सारा स्थान सुगंध से भर गया, then in the 9th verse we read, told 9, much people of Jews therefore knew that Jesus was there. फिर उसके 9वें वचन में हम देखते, यहूदियों में से कई लोगों ने जान लिया कि यीशु वहाँ पर है। Once on this text, our beloved late Pastor Philip Chandapala preached. एक बार इसी संदर्भ में हमारे भूतपूर्व चीफ पास्टर फिलिप चांडरपुले ने प्रचार किया था। He asked this question to the congregation. उन्होंने उस मंडली को देखकर ये प्रश्न पूछा। Much people of the Jews therefore knew that he was there. Wherefore? यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहाँ है। वो कब था? Much people of the Jews therefore knew that he was there. इसलिए यहूदियों में से साधारण लोग ये जान गए कि वो वहाँ है। So wherefore they knew that Jesus was there? इसका अर्थ है कि यीशु वहाँ पर है करके उन्हें कैसे मालूम हुआ? When it is written therefore, then we must look above verse somewhere wherefore. जब यहाँ पर लिखा है कि इसलिए, तो हमें उसके ऊपर के वचनों में देखना चाहिए कि कब ऐसा हुआ। What Pastor Philip Chandapala preached was that because the fragrance was filled in the house, therefore the Jews knew Jesus was there. पास्टर फिलिप चांडरपुले ने ऐसे प्रचार किया था कि क्योंकि वो घर सुगंध से भर गया था, इस कारण से लोगों ने जान लिया कि यीशु वहाँ पर है। Dear child of God, do the neighbors of your house, they get to know the perfume of grace and love of God, so that therefore they may come to know Jesus is in your house. ये परमेश्वर के बच्चे, क्या आपके घर के जो पड़ोसी हैं वो यीशु मसीह के प्रेम को, उसके अनुग्रह को जानकर, उसकी सुगंध को जानकर यीशु वहाँ करके जान लेते हैं क्या? How will your neighbors come to know that Jesus is in your house? आपके पड़ोसी किस प्रकार जान लेंगे कि यीशु उस घर में है? Here the Jews came
to know Jesus was there because fragrance was coming out of that house. यहाँ पर यहूदियों ने जान लिया कि यीशु वहाँ पर है क्योंकि सुगंध उस घर से निकल रही थी। Mary poured that ointment at the feet of Jesus, and from there, all over the fragrance was spread. मरियम ने यीशु के पांव के ऊपर उस इत्र को उंडेल दिया और वहाँ से वो इत्र सारे घर में फैल गई। Beloved ones, when your neighbors see Calvary's love filling your life, your behavior, your attitude, your conversation, your character, they will experience the perfume of God's love in your life and in your house, and they may come to know Jesus. जब आपके पड़ोसी आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में, आपके स्वभाव में कलवरी के प्रेम को भरा हुआ देखें, तब वे परमेश्वर के प्रेम के इत्र को आपके जीवन में और आपके घर में अनुभव करेंगे और वे यीशु को जान लेंगे। Oh dear child of God, one thing is needful for all of us. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, हम हर एक के लिए एक बात आवश्यक है, That is to sit at the feet of Him and hear His word. वो है यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने का अनुभव। When we fail to do the needful thing, then we will try to do the needless things and will bring worry and care. जब जो बात आवश्यक है उस काम को हम नहीं करेंगे तो अनावश्यक बात को करते हुए हम चिंता और बोझ को लेकर आते रहेंगे। When you fail to do what is needful, you have many needless things to worry about. जो आवश्यक बात है उसको करने से यदि आप चूक जाते हैं तो कई अनावश्यक बातों के बोझ के आप दबे रहेंगे। One thing, look at the emphasis of Jesus while mentioning that one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. यीशु ने जो कहा था वो एक बात के बारे में देखिए, एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा, Which shall not be taken away from her. जो उससे छीना न जाएगा। Your health one day will be taken away from you. एक दिन आपका आरोग्य आपसे छीन लिया जाएगा, Your wealth will be taken away one day from you. एक दिन आपकी संपत्ति आपसे ले ली जाएगी, Your family and friends all will be taken away from you when you die. आपकी मृत्यु के समय आपके परिवार, आपके मित्र आपसे छीन लिए जाएंगे, Your name and fame all will be taken away one day from you when you die. एक दिन आपकी मृत्यु के समय आपका नाम, आपका प्रसिद्धि, सब कुछ आपसे छीन ली जाएगी। Our talents to sing and to preach all will be taken away when we die. हमारी मृत्यु के समय गीत गाने की, प्रचार करने की जो सारी निपुणताएं हमारे अंदर है वो सब हमसे ले ली जाएगी। But Jesus told, one thing will not be taken away from you. What is that? लेकिन यीशु मसीह ने कहा एक बात तुमसे छीनी नहीं जाएगी। वो क्या बात है? We learn to sit at the feet of Jesus and hear His voice. Even in heaven, we will continue to sit at the feet of Him and will hear His voice. No man or devil will be able to take away that part from us. यदि हम यहीं पर प्रभु के पांव के पास बैठकर उसके वचन को सुनने का अनुभव अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो हमारी मृत्यु के पश्चात हम स्वर्ग में जाने से नित्यता में भी हम इसी अनुभव को बनाए रखेंगे। कोई भी मनुष्य, कोई भी शैतान इस अनुभव को हमसे छीन नहीं सकेगा। हम वहाँ भी लगातार उसके चरणों में बैठ के उसके वचन सुन पाएंगे। Dear child of God, may I plead with you, will you choose what Mary chose? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसे मरियम ने चुना, क्या आप उस उत्तम भाग को चुनेंगे? Oh, what a blessed, worry-free life it is. हाँ, कितना ही धन्य और चिंता रहित जीवन ये है। This world is full of Marthas, ये संसार पूरा मार्ता से भरा हुआ है, worried and cared about many things. जो कई बातों के बारे में चिंता करते और घबराते हैं। But God needs Marys to choose to sit at the feet of the Lord and to hear His word. लेकिन प्रभु को मरियम की आवश्यकता है जो उसके पांव के पास बैठकर उसके वचन को सुने। Jesus told, Mary has chosen the good part. यीशु ने कहा मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। It doesn't say by luck Mary got that good part. No. वो ऐसा नहीं कहता कि अनायास ही मरियम को अच्छा भाग मिल गया। It doesn't say fortunately Mary got that good part. सौभाग्य से शायद मरियम को अच्छा भाग मिल गया, ऐसा नहीं कहा गया। So it doesn't say somehow it happened Mary to have this good part. No. कैसे तो भी मरियम को ये भाग मिल गया, ऐसा नहीं कहा गया। Jesus told
Mary had chosen that good part. यीशु ने कहा मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। It was not by chance, but by choice. वो अकस्मात नहीं था लेकिन चुनाव के द्वारा हुआ। For every one of us, we have a choice to make. हम सबको एक चुनाव करना है। It is up to you and me to make the choice. ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम चुनाव को करें। We have a beautiful church in Canada, a place called Vancouver. कनाडा में वैंकूवर नाम के स्थान में एक बहुत ही सुंदर हमारे लिए चर्च है। Beautiful church means a very good example for the whole world. बहुत सुंदर चर्च कहने से सारे संसार के लिए बहुत ही एक आदर्श होकर दिखाई देता है। We have from many parts of the world believers, they are like one people. संसार के कई भागों से कई विश्वासी वहाँ पर है, वे सब एक परिवार होकर दिखाई देते हैं। No one has kept a television set. किसी के घर में दूरदर्शन नहीं है। All of them got rid of the television set. सभी ने अपने घर से दूरदर्शन को निकाल दिया है। Nobody works on Sundays. कोई भी रविवार को काम नहीं करता। They have chosen that type of work. उन्होंने इस प्रकार के काम को चुन लिया। No one works in the evenings. कोई भी शाम के समय काम नहीं करता, So that they can have time for family prayers in the evening. ताकि शाम के समय पारिवारिक प्रार्थना के लिए उन्हें समय मिल सके। Whether you believe it or not, Sunday morning the same crowd will come, the same crowd will be Tuesday evening for the cottage meeting, the same crowd will be Tuesday evening. चाहे आप विश्वास करें या न करें, रविवार को सुबह जितने लोग कलीसिया में आते उतने ही लोग मंगलवार को शाम को किसी के घर में होने वाली प्रार्थना में भी उतने ही लोग आते हैं। And if you don't happen to come, your phone will be flooded with phone calls. What happened to you? What happened to you? और यदि आप नहीं आ पाए तो आपके घर में पूरा फोन इतना आता रहेगा कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। Some of them immediately after the meeting, they will come to your house. और कुछ लोग तुरंत ही मीटिंग के पश्चात आपके घर में भी आ जाएंगे। So even if some people have got little sickness, somehow they will go to meeting. और इसलिए चाहे किसी को थोड़ा सा भी बीमारी क्यों न हो, फिर भी वो लोग मीटिंग में आ जाएंगे। Is there a Bible verse to say, man goes to work and come back in the evening? पवित्र शास्त्र में ऐसा एक वचन है कि मनुष्य काम पर जाकर शाम को अपने घर में आता है। Psalm 104 verse 23, man goeth forth unto his work and to his labor until the evening. भजन संहिता 104 उसका 23 वचन में हम पढ़ते हैं, तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। Man goeth forth which is unto his work and to his labor until the evening. तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। So he goeth forth unto his work and to his labor until the evening. वो शाम तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। So it is true there may be exceptional cases in your life. ये सच है, आपके जीवन में कुछ ऐसे विकल्प भी होंगे। Some emergency or situations may be there. You may have to work. I can't help. कई बार कुछ आपातकालीन सेवाएं हो सकता है, उसमें आपको काम करना होगा, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। I cannot say you should never work in the evening. I cannot say. मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप लोग कभी भी संध्या काल को काम नहीं करना चाहिए। There is a principle in the Word of God. If our heart will cry out to God, accordingly, God is able to grant the desire of your heart to come home in the evening, to have family prayers, to spend time with your children, and to go for the meetings. परमेश्वर के वचन में एक सिद्धांत है कि यदि हमारा हृदय परमेश्वर की दुहाई देगा तो उसके अनुसार परमेश्वर आपके आग्रह को पूरा करेगा कि आप शाम के समय घर आकर पारिवारिक प्रार्थना करें और बच्चों के साथ समय बिताएं और आराधनाओं में भी जा सकें। Many people don't want God to have the first place, but money and material and preference is how much salary I will get, rather than whether it will help the spiritual life or not. कई लोग परमेश्वर को मुख्य स्थान देना नहीं चाहते, लेकिन पैसा और धन संपत्ति को आत्मिक जीवन की बातों से बढ़कर उन बातों को अधिक महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। मुझे कितना वेतन मिलेगा इसकी चिंता करते हैं। Remember, dear children of God, everything from your life will be taken away except what you do on this earth, sitting at the feet of the Lord and hearing His word. That will not be taken away from you even in eternity. याद रखिए प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आपके जीवन से सब कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनने का जो अनुभव है वो नित्यता में भी आपसे छीना नहीं जाएगा।
Mark chapter 5 verse 15. He always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. मरकुस रसूल समाचार 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों से चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। He was a very, very busy man. ये व्यक्ति बहुत ही व्यस्त रहता था। Always he was cutting and crying, climbing the mountain and coming down, and then going down to the tomb and then coming out, very busy. वो हमेशा बहुत ही व्यस्त रहता था, पहाड़ों पर चढ़ना फिर उतरना, कब्रों के पास जाना, अपने आप को पत्थरों से घायल करना, ऐसे कामों में व्यस्त रहता था। And finally one day Jesus met him. अंत में एक दिन यीशु ने उससे मुलाकात की। And then what happened? उसके पश्चात क्या हुआ? I want all of you now to take Mark chapter 5 verse 15. All please take the Bible. कृपा करके सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए। मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 15 वचन। Whatever language you have, we want to read it together. There is something interesting for you. It is edifying for your soul and my soul in that. आपकी पवित्र शास्त्र किसी भी भाषा की क्यों न हो, हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। इसमें मेरे और आपके प्राणों की उन्नति के लिए कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। Mark chapter 5 verse 15, we are going to read loudly together. मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 15 वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। Whatever language you have, let us read together. आपकी पवित्र शास्त्र किसी भी भाषा की क्यों न हो, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3. और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर जेउस को जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सच्चे बैठे देखकर डर गए। In his right mind, and they were afraid. What we find here, something beautiful happened to this man. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति के साथ कुछ सुंदर बात हुई। This madman couldn't do one thing. What was that? ये पागल व्यक्ति एक काम नहीं कर पा रहा था। वो क्या था? He could climb up to the mountain. वो पहाड़ तक चढ़ पाता था। He could climb down to the mountain. वो पहाड़ से नीचे उतर पाता था And he was able to go down to the tomb. और वो कब्र तक नीचे जा पाता था। He was able to cut himself. वो अपने आप को घायल कर पाता था। He was able to cry. वो रो पाता था। He could run. वो दौड़ सकता था। What was the one thing he couldn't do earlier? लेकिन एक बात क्या थी जो पहले नहीं कर पा रहा था? He couldn't sit. वो बैठ नहीं पाता था। Some of our people are like the madman of Gadara. हमारे कुछ लोग इस गदरेनियों के उस पागल व्यक्ति के समान हैं। After Jesus met him, he was found sitting at the feet of Jesus. जब यीशु ने उससे मुलाकात की, उसके पश्चात वो यीशु के पांव के पास बैठा दिखाई दिया। He was found sitting at the feet of Jesus. वो यीशु के पांव के पास बैठा हुआ था। They were afraid. लोग ये देखकर डर गए। And they found he was in the right mind. तब उन्होंने देखा वो सचेत मन के साथ बैठा हुआ है। Now the man of Gadara, he's no more a madman, but he's in the right mind. How did people come to know? अभी गिरासेनी के देश का ये व्यक्ति वो पागल नहीं है, वो सचेत मन के साथ है करके कैसे उन्होंने जान लिया? How did the people come to know he was in the right mind? उस देश के लोगों ने कैसे जान लिया कि ये एक सही मन के साथ दिखाई देता है? He was sitting at the feet of Jesus. क्योंकि वो यीशु के पांव के पास बैठा था। Before that, he didn't have time for that. उसके पहले उसके पास इसके लिए समय नहीं था। Now there are modern Pentecostals, so many madmen of Gadara. No time to sit at the feet of Jesus. They have so much time to do this and that. Very, very busy. अभी कई आधुनिक पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो गिरासेनी के देश के इस व्यक्ति के समान है, जिनके पास बैठने के लिए समय नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना, हमेशा वे व्यस्त होकर दिखाई देते हैं, लेकिन यीशु के पांव के पास बैठने के लिए समय नहीं। Early morning get up. बड़ी भोर को वे उठ जाते हैं। As soon as get up, brush the teeth, go to work. जैसे ही उठते अपने दांत सफाई करके तुरंत काम पर चले जाते हैं। And then for the overtime. उसके पश्चात ओवर टाइम के लिए काम करते हैं, And the part time. फिर पार्ट टाइम करते हैं, And the double time or whatever time. फिर और ऐसे कुछ न कुछ करते हैं। And come back home, no time for anything, just to sleep. Eat and sleep. उसके बाद रात को घर लौटते, फिर काम कुछ भी करने के लिए समय नहीं, केवल सो जाते हैं। You are a madman of Gadara. ऐसा है तो आप गिरासेनी के देश के वो पागल व्यक्ति के समान हैं।
You are climbing up and down and running and full of pain. You cut yourself. आप ऊपर नीचे चढ़ते और उतरते रहते, पूरी तरह से अपने आप को घायल कर लेते हैं। This madman had no time to sit at the feet of Jesus. इस पागल व्यक्ति को यीशु के पास बैठने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। When people saw that this madman was sitting, they were afraid. जब लोगों ने देखा ये पागल व्यक्ति बैठा हुआ था तो वे लोग उसे देखकर डर गए। And they saw he was in the right mind. और उन्होंने देखा कि वो एक सही मन के साथ बैठा हुआ था। In other words, lesson we learned, beloved ones, till we learn to sit at the feet of the Lord, we don't have the right mind, the mind of Christ. हाँ प्रिय लोगों, जब तक हम यीशु के पांव के पास नहीं बैठेंगे, हमारे अंदर मसीह का मन, वो सचेत मन नहीं होगा। All that you have in mind will be worry, care, anxiety, and all the other burdens of life. हमारे जीवन में हमेशा चिंता, बोझ और सब प्रकार की घबराहट दिखाई देगी। You are wasting your life in that way. आप इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। Don't be a madman of Gadara. गिरासेनी के देश के पागल व्यक्ति के समान न हो। Come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। How many people, God's people, spend their lifetime like the madman running around, cutting himself, his soul, with all the burdens and sorrows. कितने ही परमेश्वर के लोग उस पागल व्यक्ति के समान यहाँ वहाँ भागते रहते हैं और अपने आप को घायल करते रहते हैं। All that you have got is worry and care. आपके जीवन में केवल चिंता और बोझ पाया जाता है। Look at Mary. लेकिन मरियम को देखिए, Martha was complaining against her. मार्था तो इसके विरोध में शिकायत कर रही थी। Martha was finding fault with Mary. मार्था तो मरियम की गलती देख रही थी। Mary was sitting at the feet of Jesus. क्योंकि मरियम तो यीशु के पांव के पास बैठी थी। Mary kept quiet. मरियम तो चुप रही। Mary did not answer back to Martha. मरियम ने तो मार्था को उत्तर नहीं दिया। Mary did not defend herself. मरियम ने अपना बचाव नहीं किया। Mary did not justify herself. मरियम ने अपने आप को धर्मी नहीं ठहराया। But Jesus took up her cause. लेकिन यीशु मसीह ने उसका पक्ष लिया। Jesus vindicated Mary. यीशु मसीह मरियम के निमित्त बात करता है। Jesus defended Mary. यीशु ने मरियम का बचाव किया। Jesus justified Mary. यीशु ने मरियम को धर्मी ठहराया। Jesus exalted and honored Mary. यीशु ने मरियम का आदर किया, उसका सम्मान किया। Like Mary, if we learn to sit at the feet of the Lord, मरियम के समान यदि हम उसके पांव के पास बैठने के लिए सीख लेंगे, God will fight our battles. तो प्रभु हमारे युद्धों को लड़ेगा। No weapon that is formed against thee shall prosper. तेरे विरोध में उठने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। Every tongue that riseth against thee, thou shalt condemn. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me. और ये उसके दासों का भाग होगा और उनकी धार्मिकता मेरे द्वारा होगी, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। If Mary had not been sitting at the feet of Jesus and hearing his word, यदि मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर उसके वचन को नहीं सुनती तो Mary could have been defending and getting angry with Martha, and there could have been a heated exchange. तो मरियम अपना बचाव करते हुए मार्था के साथ वाद विवाद करती रहती और वहाँ बहुत अधिक क्रोध के साथ बातचीत चलती। Dear children of God, how many times we try to defend and justify ourselves because we have not chosen the good path to sit at the feet of the Lord and hear His word. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसके वचन को सुनने के उस उत्तम भाग को हम नहीं चुनते। इस कारण से कितनी बार हम अपने लिए बचाव करते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। There is a difference from receiving His word and God sending His word. उसके वचन को पाने में और परमेश्वर अपने वचन को भेजना, इन दोनों में एक अंतर है। Here, Mary sat at the feet of the Lord and received His word. यहाँ मरियम प्रभु के पांव के पास बैठकर उसके वचन को सुनती थी या प्राप्त करती थी। And we read also in Psalm 68:11, the Lord gave the word.
भजन संहिता 68 के 11 में हम पढ़ते, परमेश्वर अपना वचन देता है। Deuteronomy 33:3 we read, all the saints sit at his feet and receive his word from him. व्यवस्था विवरण 33:3 में हम देखते हैं, उसके भक्त लोग उसके पांव के पास बैठकर उसके वचन को प्राप्त करते हैं। There is a vast difference between receiving the word from him and God sending his word. परमेश्वर से वचन को प्राप्त करना और परमेश्वर अपने वचन को भेजना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। Receiving the word means we sit at the feet of the Lord, looking to the face, seeking the face of God. वचन को प्राप्त करने का अर्थ है प्रभु के पांव के पास बैठना, उसके चेहरे की ओर दृष्टि करके उसे वचन को पाना। But in Psalm 107 verse 20, we read, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. लेकिन भजन संहिता 107 उसका 20वां वचन में हम पढ़ते हैं, वो अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उसे निकालता है। Oh, He is sending His word. That means you are far away from God. You are about to be destroyed. God is sending the word and delivering you from your destruction. वो अपने वचन को भेजता है, इसका अर्थ है कि आप प्रभु से बहुत दूर होकर पाए जाते हैं, आप नाश होने की कगार पर हैं। इस कारण से प्रभु अपने वचन को भेजकर आपको उसमें से बचा लेता है। Send His word and delivered them from their destruction. वो अपना वचन को भेजकर उन्हें उस विनाश से बचा लेता है। If today you are far away from God, यदि आज आप प्रभु से बहुत दूर हैं तो come close to Him. उसके निकट आ जाएं। Two ways you can receive the word. दो प्रकार से आप उसके वचन को पा सकते हैं। You can receive the word as you sit at His feet. उसके चरणों के पास बैठकर आप उसके वचन को पा सकते हैं। You live far away from God, then He may send His word to deliver you from destruction and to heal your soul, spirit and body. और यदि आप प्रभु के वचन से बहुत दूर होकर दिखाई देते हैं तो अपने वचन को भेजकर वो आपको विनाश से बचाता है और आपके आत्मा और प्राण और शरीर को चंगा करता है। That is not the best in life. लेकिन वो जीवन का श्रेष्ठ हिस्सा नहीं है। Yes, you may be today far away from God and you are on the verge of destruction and perdition. आज हो सकता है कि आप प्रभु से बहुत दूर होकर दिखाई देते होंगे, आप विनाश के मार्ग में हमें दिखाई देते होंगे। Come and take the very chosen path. आइए और मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुन लिया उसे आप चुन लें। That is the only one thing will remain in eternity. All other things, your wealth and your health, your friends, your family, all will be taken away one day when you die. But this one thing that Mary chose cannot be taken away by anyone. आपका धन संपत्ति, आपका आरोग्य, आपका मित्र, ये सब कुछ एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना था वो एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा, वो सदा आपके साथ बना रहेगा। As I mentioned earlier, in 3 places we read Mary of Bethany, and all the 3 places she is at the feet of Jesus. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 3 स्थानों में हम देखते हैं कि बेथनिया की मरियम के बारे में, और इन तीनों स्थानों में हम यही देखते हैं कि वो यीशु के पांव के पास बैठी हुई दिखाई दी। First we read here in Luke chapter 10, already we read the portion. पहले लूका का सुसमाचार 10वें अध्याय में हमने वो वचन पहले ही पढ़ लिया है। There the Lord vindicated Mary, justified or honored Mary. वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने मरियम का पक्ष लिया, नहीं तो उसको धर्मी ठहराया, उसका आदर किया। And there we learn the secret. How can we live a life free from worries, free from troubles, free from all the cares of this world? वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से चिंता और बोझ के बिना, संकट के बिना कैसे हम जीवन बिता सकते हैं, उससे छुटकारा पाकर कैसे जी सकते हैं। We must learn to spend quality time at the feet of Jesus. यीशु के सम्मुख में, उसके पांव के पास अपना अच्छा उत्तम समय को बिताने के लिए हम सीखना चाहिए। And second time we read in John chapter 11, after Lazarus died, Mary fell at the feet of Jesus. उसके पश्चात हम देखते लाजर की मृत्यु के पश्चात मरियम यीशु के चरणों पर गिरी रही। And look at that. Although Martha spoke loved Jesus, but we don't see any place Martha was at the feet of Jesus. मार्था ने यीशु से प्रेम तो किया था, बात तो किया था, लेकिन वो मार्था यीशु के पांव के पास बैठी करके हम नहीं देखते। But what is the difference here in Mary and Martha? लेकिन यहाँ मार्था और मरियम के बीच में क्या अंतर हम देखते हैं?
In John chapter 11 verse 32 we read when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. यूहन्ना का सुसमाचार 11 के 32 में हम पढ़ते, तब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। Look at this, more or less the same words Martha also spoke to Jesus. But when Martha spoke, she didn't fall at the feet of Jesus and speak that. देखिए, मार्था ने भी इसी प्रकार शब्द कहे थे, लेकिन जब मार्था ने वो शब्द कहे तो उसने कभी भी यीशु के पांव के पास गिरकर ये शब्द नहीं कहे। John 11:21 says, Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. यूहन्ना 11 का 21 में हम पढ़ते, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। So Martha and Mary both spoke the same thing the same day to Jesus. मार्था और मरियम ने वही बात एक ही दिन में यीशु से कही थी। But what was the difference? लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या था? Mary fell at the feet of Jesus and spoke those words. Those words had power to raise Lazarus out of the tomb. मरियम ने यीशु के पांव के पास गिरकर ये शब्द कहे थे, इसलिए उसके शब्दों में लाजर को कब्र से जिलाने के लिए सामर्थ थी। Beloved ones, some of your family members may be dead like Lazarus, spiritually dead, maybe sinners or backsliders, in a dead state they may be. ये लोगों हो सकता है आपके परिवार के कुछ सदस्य भी पीछे अवस्था में होंगे, आत्मिक रूप से पीछे उठे हुए एक मरी हुई अवस्था में दिखाई देते होंगे। And those sisters told, my brother, our brother is stinky. उन बहनों ने कहा, मेरे भाई में तो दुर्गंध आती है। Maybe your brother may be stinky, his life may be stinky. शायद हो सकता है आपके भाई के जीवन से भी दुर्गंध आती होगी। Maybe your life may be stinking, spiritually dead, and you are life in spiritual state in a tomb. शायद हो सकता है आपका जीवन भी आत्मिक रूप से दुर्गंध के साथ दिखाई देता होगा। आत्मिक रूप से हो सकता है आप भी इस कब्र की अवस्था में पाए जाते होंगे। But as Mary fell at the feet of Jesus, things changed. लेकिन जब मरियम यीशु के पांव के पास गिरी तो सब बातें बदल गई। And the Lord was able to raise Lazarus out of the tomb to be a living testimony. और जीवित गवाह होने के लिए यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से जिला दिया। Dear child of God, today the Lord is challenging us. Are you going to choose the best part in your life? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आज हमको प्रभु चुनौती देता है, क्या आप अपने जीवन के उस उत्तम भाग को चुन लेंगे? Do you know what is the best way in the rest of your life? क्या आप जानते हैं अपने शेष जीवन के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? A life that is not spent at the feet of Jesus is a wasted life. जो जीवन यीशु के चरणों के पास बिताया नहीं जाता, वो जीवन व्यर्थ जीवन है। A life that is not spent in the service of Jesus is a wasted life. यीशु की सेवा में जो जीवन बिताया नहीं जाता, वो एक व्यर्थ जीवन है। You are spending, rather you are wasting your precious life. आप अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ बिता रहे हैं। Your life is very precious to God. आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। It may be only a short time may be left. शायद हो सकता है थोड़ा ही समय बाकी हो। Why don't you choose what Mary chose, which cannot be taken away from her? जैसा मरियम ने चुना, जो उसे छीना नहीं जाएगा, उस उत्तम भाग को क्यों नहीं आप चुन लेते? Oh, Jesus is waiting to speak to us. हाँ, यीशु मसीह हमसे बात करने के लिए बाट जो रहा है। Every day He wants to speak to us. प्रतिदिन वो हमसे बात करना चाहता है। He wants to speak to us more than we want to speak to Him. हम उससे जितना बात करना चाहते हैं, उससे अधिक वो हमसे बात करना चाहता है। I believe in heaven He will be speaking to us more than we speak to Him. मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग में हम जितना उससे बात करते हैं, उससे अधिक वो हमसे बात करेगा। Because in heaven we will not have any questions to ask. All our questions will be
automatically answered when we see the face of Jesus. क्योंकि स्वर्ग में जाकर हमें यीशु के लिए प्रश्न पूछने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम उसके चेहरे को देखेंगे हमारे प्रश्न का उत्तर अपने आप हमें मिल जाएगा। I believe in heaven the Lord will be speaking more to us and we will be speaking less. मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग में प्रभु हमसे अधिक बात करेगा और हम उससे कम बात करेंगे। Beloved ones, do you want heaven on earth? प्रिय लोगों, क्या आपको इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव चाहिए? He wants to speak to us more than we want to speak. हम उससे जितना बात करना चाहते हैं उससे अधिक वो हमसे बात करना चाहता है। He wants to speak so many things to us. वो हमसे कई बातें कहना चाहता है, But we don't want to sit at his feet and to listen to his word. लेकिन हम उसके चरणों के पास बैठकर उसके वचन को सुनना नहीं चाहते। Many of us don't have time to sit at the feet of the Lord. हम में से कई लोगों को प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए समय नहीं है। Beloved ones, don't be like the man of Gadara. He had no time to sit, but he had time for all other things. प्रिय लोगों, उस गिरासेनियों के देश के इस व्यक्ति के समान न बने। उसके पास बाकी सब बातों के लिए समय था, लेकिन प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए समय नहीं था। When Mary poured the ointment at the feet of Jesus, जब मरियम ने यीशु के चरणों पर उस बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया, why did she broke the box and poured the ointment at the feet of Jesus? उसने क्यों उस इत्र की बोतल को तोड़कर यीशु के चरणों में उंडेल दिया? There were mainly two reasons. मुख्य रूप से उसके दो कारण थे। Mary had opened the cork of the bottle and poured. Maybe in the neck of the bottle some fragrant ointment may remain there. She did not want a drop of ointment to be retained for herself in the bottle, or the last drop also to be poured for Jesus. यदि मरियम उस कुप्पी के ढक्कन को खोलकर उस इत्र को उंडेलती तो शायद उस कुप्पी के सिरे पे थोड़ा सा इत्र बाकी रह जाता, लेकिन मरियम नहीं चाहती थी कि उस इत्र का थोड़ा सा भी हिस्सा वो अपने लिए रख छोड़े। वो सारे के सारे इत्र को यीशु के चरणों में उंडेल देना चाहती थी। इस कारण से उसने उस कुप्पी को तोड़कर यीशु के चरणों में वो इत्र को उंडेल दिया। We must pour the last drop of our love only for Jesus and no for nobody else, for nothing else. प्रिय लोगों, हमारे प्रेम का जो अंतिम हिस्सा है उसको भी हम केवल यीशु के लिए उंडेल देना चाहिए। उसका एक भी हिस्सा, एक भी बूंद हम अपने लिए न रख छोड़े। Keep your love pure. अपने प्रेम को शुद्ध बनाए रखें। Let it not be defiled anything of the vanities and the pleasures and sin of the world. ये संसार की व्यर्थता, संसार के पाप के द्वारा, उस सुख विलास के द्वारा किसी भी तरह से उसे मलिन न करें। Keep your love pure. अपने प्रेम को शुद्ध बनाए रखें। That love has to be poured at the feet of Jesus without retaining even a drop for us. उस प्रेम को पूरी तरह से हमें यीशु के चरणों में उंडेल देना है। उसमें से एक बूंद भी अपने लिए हमें शेष नहीं रखना। He gave the last drop of blood in love for us. यीशु मसीह ने अपने प्रेम से अपने लहू की अंतिम बूंद को भी हमारे लिए बहा दिया। And what is the second reason why she broke that precious alabaster box at the feet of Jesus? यीशु के चरणों में संगमरमर के पात्र को तोड़ा, उसका दूसरा कारण क्या था? Already told you one meaning of the alabaster box is our lamp. मैंने आपको उसका एक अर्थ पहले ही बता दिया था। वो संगमरमर का पात्र कहने से वो हमारा जीवन को दिखाता है। And she broke it and poured at the feet of Jesus so that that alabaster box may not be used for anything else, for anyone else, but only for Jesus. उसने उस पात्र को तोड़कर यीशु के चरणों में इसलिए उंडेल दिया ताकि आगे से वो पात्र किसी और काम के लिए कभी भी इस्तेमाल में न आ सके। वो केवल पूरी तरह से यीशु के लिए ही खर्च किया जाए। Your life is a precious alabaster box. आपका जीवन एक बहुमूल्य इत्र की कुप्पी है। Let it be filled with that heavenly love, pure love. वो स्वर्गीय प्रेम, शुद्ध प्रेम से भरपूर होकर दिखाई दे। Bring it to the feet of Jesus. उसे यीशु के चरणों में लेकर आए। It's very precious ointment. वो बहुत ही बहुमूल्य इत्र था। Then one man called Judas Iscariot, he got very annoyed. यहूदा इस्करियोती नामक एक व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित हो गया। Why this waste of ointment made? क्यों इस तेल को इस प्रकार से व्यर्थ कर दिया? Immediately again, Jesus defended Mary once again.
तुरंत हम देखते यीशु मसीह ने और एक बार मरियम के लिए बचाव का पक्ष लिया। Again Jesus justified Mary. दोबारा यीशु ने मरियम को धर्मी ठहराया। Again Jesus exalted and honored Mary. यीशु ने फिर से मरियम का आदर किया, उसका सम्मान किया। Those who sit at the feet of the Lord, beloved ones, the Lord will justify, exalt and honor them. जो प्रभु के पांवों के पास बैठते हैं, प्रभु उनको धर्मी ठहराता है, उनका आदर करता है, उनको ऊंचा करता है। And what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Let her alone, against the day of my burial, she had done this. उसने मेरे गाड़ने के दिन के लिए किया, इसलिए उसे ऐसे छोड़ दे। Did you know what happened after the burial of Jesus? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के गाड़े जाने के पश्चात क्या हुआ? Some women went with ointment and spikenard and all to embalm Jesus, but it was too late. Jesus was resurrected. कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर को नाश होने के बिना उसमें बहुमूल्य इत्र लगाने के लिए यीशु की कब्र के पास गए थे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। यीशु उसके पहले जी उठा था। Mary of Bethany didn't go there. लेकिन बथनिया की मरियम वहां नहीं गई। Mary did this for the Lord's burial. मरियम ने इसे यीशु के गाड़े जाने के लिए किया था। Precious ointment was used for his burial. उसके गाड़े जाने के दिन के लिए उस बहुमूल्य इत्र का उपयोग किया गया। She was the only privileged woman for burial of Jesus. Her ointment was used. उसके गाड़े जाने के दिन के लिए केवल इसका ही इत्र का उपयोग किया गया। In a symbolic way, it was used for burial of Jesus Christ. जैसे यीशु ने कहा कि ये एक चिन्ह के रूप में दिखाई दिया कि उसके गाड़े जाने के दिन के लिए उसने उपयोग किया। There might have been many people who may have better ointment than Mary had there. शायद हो सकता है मरियम से भी कहीं उत्तम इत्र रखे हुए कई लोग वहाँ पर दिखाई देते होंगे। They might have told, oh, if I had known it was for the burial of Jesus, I could have used up my ointment, but it was too late. उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये यीशु के गाड़े जाने के लिए तो मैं अपने इत्र को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। It was too late for those people. They didn't know that Mary had done for the Lord's burial. उस समय तक बहुत देर हो गई थी, वे नहीं जानते थे कि यीशु के गाड़े जाने के दिन के लिए मरियम ने किया था। When you bring your life, alabaster box at the feet of Jesus. जब आप अपने जीवन रूपी संगमरमर के पात्र को यीशु के पांव के पास लेकर आते हैं, And you break it and dedicate it and pour out the pure love only for Him. और जब आप उसे तोड़कर अपने शुद्ध प्रेम को केवल उसके लिए आप समर्पण करते हैं, Then fragrance will be diffused all over. तब सारा स्थान सुगंध से भर जाएगा। Many will come to know Jesus because of that. उसके कारण बहुत से लोग यीशु मसीह को जान लेंगे। Judas told, why was this waste of the ointment made? यहूदा ने कहा कि क्यों ये इत्र को ऐसा बर्बाद किया गया। Beloved ones, nothing given to Jesus in love will ever be a waste. प्रिय लोगों, प्रेम के साथ जो कुछ भी हमने यीशु के लिए दिया है वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। In fact, that is the best way, the meaningful way to spend our precious life. लेकिन कहा जाए तो हमारे बहुमूल्य जीवन को खर्च करने का वही सबसे श्रेष्ठ तरीका है। That wicked man criticized, Judas criticized, why this waste woman? वो दुष्ट मनुष्य, वो यहूदा इस्करियोती ने नुक्ताचीनी की कि क्यों ये बहुमूल्य इत्र को ऐसा बर्बाद किया गया। Yes, even now, when a brother or a sister is dedicating to serve God, to love God, and follow God, and consecrate their life, so many people say, why are you wasting your life going to the faithful? हाँ प्रिय लोगों, आज भी हम देखते हैं जब कोई अपने बहुमूल्य जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करके प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पण करता है, प्रतिष्ठा करता है, तो लोग उसे देखकर कहते, तू क्यों अपने जीवन को ऐसे बिगाड़ रहे हो, क्यों प्रभु की सेवा के लिए जाते हो, Why are you wasting your life? क्यों तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। They say, why you are consecrating your life? वो कहते, तुम क्यों अपने जीवन को प्रतिष्ठा कर रहे हो। Oh, what a waste it is. देखो ये कितनी बर्बादी है। Judas also told it, he thought it was a waste. हाँ, यहूदा ने भी ऐसा ही कहा, उसने यही सोचा होगा कि ये बर्बाद हो गया। But the word waste, the original is
The perdition also on the waist, the same word is used in the Bible. लेकिन जो बर्बाद करना या व्यर्थ करना और नाश हो जाना, इन सब के लिए पवित्र शास्त्र में एक ही शब्द कहा गया है। Judas, in fact, he was called the son of perdition. वास्तव में कहा जाए तो यहूदा को विनाश का पुत्र कहा जाता था। And that word son of perdition, same word is used, son of waste. विनाश का पुत्र के लिए बर्बादी का पुत्र वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Beloved ones, in fact, it was not Mary of Bethany wasted the life, but it was the son of waste, Judas, wasted his life. प्रिय लोगों, बेतनिया की मरियम ने उससे अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया था, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया था। He wasted his golden opportunity to love and serve Jesus. यीशु को प्रेम करके उसकी सेवा करने के उस सुनहरे अवसर को उसने बर्बाद कर दिया। More than 3 years he was with Jesus. 3 वर्ष से अधिक वो यीशु के साथ था। He had seen Lazarus coming out of the tomb with his own eyes. उसने अपनी आंखों से लाजर को कब्र से बाहर आते हुए देखा था। He had heard the Sermon on the Mountain and so many other beautiful messages from Jesus. उसने यीशु मसीह से पहाड़ी उपदेश और कई सुनहरे उपदेशों को सुना था। He wasted his life. लेकिन उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। He wasted his opportunity. उसने अपने अवसर को बर्बाद कर दिया। He wasted his calling. अपनी बुलाहट को उसने बर्बाद कर दिया। He wasted the revelation God gave. प्रभु ने उसको दिया प्रकाशन, उसने बर्बाद कर दिया। Now also in hell he is wasting his life. अभी भी नरक में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। Don't be a son of perdition. Don't be a Judas Iscariot. आप विनाश का पुत्र होकर यहूदा इस्करियोती होकर दिखाई न दे। Today, will you choose what Mary chose? आज क्या आप मरियम के समान चुनेंगे? No one will take away from her what Mary chose. मरियम ने जो चुना था वो कोई भी उससे नहीं छीनेगा। Today you may have the best job in the world. आज हो सकता है इस संसार में आपको सबसे सर्वोत्तम नौकरी होगी। One day that job will be taken out of you. एक दिन वो नौकरी आपसे छीन ली जाएगी। You are good children, good husband, good wife, good father, good mother. One day they will be taken away from you. आपके अच्छे बच्चे, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छे माता पिता एक दिन सब आपसे छीन लिए जाएंगे। You have good wealth and good health. One day it will be taken away from you. आपके पास अच्छा आरोग्य, अच्छी संपत्ति है, लेकिन एक दिन वो आपसे छीन ली जाएगी। You have good education and lot of degrees. One day will be taken away from you. आपकी अच्छी पढ़ाई, आपकी डिग्री सब एक दिन आपसे छीन ली जाएगी। You may be talented to sing and preach and play piano or heal people. So many gifts you will have. One day will be taken away from you. शायद गीत गाना, प्रचार करना, पियानो बजाना या लोगों को चंगा करना, ऐसी कई तरह की योग्यता आपके अंदर हो सकती है, लेकिन एक दिन ये सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा। Mary had chosen the good path and that will not be taken away from her. लेकिन मरियम ने जिस अच्छे भाग को चुन लिया वो उससे छीना नहीं जाएगा। Will you choose the best today? क्या आज आप उस सर्वोत्तम को चुनेंगे? If we come and sit at the feet of the Lord and hear His voice, यदि हम उसके पांव के पास बैठकर उसके शब्द को सुनेंगे, one day when the trumpet will come and you hear His voice and you will be at the feet of Jesus. तो एक दिन जब नरसिंगा फूका जाएगा, आप उसकी आवाज को सुनेंगे और उसके पांव के पास आप बैठ सकेंगे। Those who choose the best path to sit at the feet of the Lord will be finally at the feet of the Lord, hearing the voice of the trumpet. केवल जो लोग उसके पांव के पास बैठने के उस उत्तम भाग को चुन लेते हैं, वे ही नित्यता में उस नरसिंगे के शब्द को सुनकर उसके पांव के पास बैठ पाएंगे। May the Lord make us all Marys. प्रभु आप ही हम सबको मरियम के समान बनाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।
Oh, hallelujah, hallelujah. Shall we admit before God, Lord, I am that madman of Gadara. आइए हम प्रभु के सामने मान ले, हाँ प्रभु, मैं गिरासेनी के देश का वो पागल व्यक्ति हूँ। I have been running around, but I don't have time to sit at the feet of the Lord. मैं यहाँ वहाँ भागता रहता था, मेरे पास यीशु के चरणों के पास बैठने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। Lord, change me and make me a Mary. हे प्रभु, मुझे बदल के मुझे मरियम बना दे। Of my life, help me to pour at the feet of my Jesus. अपने जीवन को यीशु के चरणों में उंडेलने के लिए तू मेरी सहायता कर। Let us all rededicate our life. हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंप दे। The alabaster box and break at the feet of Jesus. वो संगमरमर के पात्र को लाकर यीशु के चरणों में तोड़ दे। Oh, let the fragrance come out now. वो सुगंध बाहर आ जाए। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रार्थना करें। Loving and gracious Heavenly Father, you bless this convention so much, O God. Even this morning you came and blessed us and gave your word, Lord. As thy people go, Lord, we pray, my God, let the spirit of Mary always be found in us, we pray. Thank you for helping us in Jesus' name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Hallelujah! 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 Hallelujah!